Okay, so today we are going to study about electromagnetic spectrum. But before we study electromagnetic spectrum, let's study about one or two properties, two basic properties of electromagnetic wave. So make a star mark and write it down. All electromagnetic waves moves with a constant speed. Moves with constant speed. That is, c is equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Next, energy of an electromagnetic wave increases with frequency. Increases with frequency. Write it down. The energy E is equals to, or we can write it down, energy increases with frequency. So that is implied that energy is directly proportional to, we can write it down F, we can write it down nu. So general use is nu frequency. So that is implied that the constant हम यहाँ पे ऐड करेंगे, E is equals to h nu. E is equals to h nu, where h is the Planck's constant. It is given by 6.62 into 10 to the power minus 34 by magnitude. और यूनिट इसका क्या हो जाएगा h का? देखो, इसका है जूल, इसका है हर्ट्ज. हर्ट्ज मतलब 1 by second. So इसको सेकंड हो जाएगा. So this will be joule second. This is the unit. So these two data will be used in solving problems. So that's why I gave you. So now next let's move to electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. Now let's go to the basic of electromagnetic wave. What is an electromagnetic wave? Electromagnetic wave क्या होता है? It is basically a wave in which energy transfer is being held. Energy transfer हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो ऑसिलेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का ऑसिलेशन हो रहा है. और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो भी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर है. एंड उससे भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज 3 into 10 to the power 8 meter per second. That is the speed of light, right? So क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक तरह का है? नहीं, उसका स्पीड कांस्टेंट है. क्या मैंने बोला कि उसका वेवलेंथ सेम कांस्टेंट है? क्या मैंने बोला कि उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है? नो, दे वेरी. सारा का सारा वेरी करता रहता है. सो वेवलेंथ वेरी करता है. बहुत वैरायटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर देयर. It ranges from very low value to very high value. उसका वेवलेंथ बहुत छोटा से बड़ा वैल्यू को रेंज करता है और फ्रीक्वेंसी भी बहुत छोटा से बहुत रेंज करता है. फॉर एग्जांपल, बहुत बड़ा जो हाई लेवल में जो जाता है, मैं बताता हूँ उसके बारे में. So here you see what we can understand is that इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी इस तरह से लो से वेरी हाई को रेंज करके वेरी हो सकता है. So this is frequency. Frequency is increasing, right? So frequency अगर increase कर रहा है तो फिर क्या हुआ है, इसका बहुत छोटा से बहुत बड़ा रेंज को ये वेरी करने लगा. सो इसका अलग अलग बैंड्स आ गए. अलग अलग बैंड्स क्या हुआ, हमें पहले कुछ रीजन के लिए पता चले कि हाँ ये रीजन में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. फिर हमें पता चले कि ये रीजन में कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है.
तो जब तक सेकंड वाला आता ये पहले वाले का हमारा नामकरण हो चुका था, the naming had done already. Then we came to know that there is a region at here, then we came to know that there is a region at here, there is a region at here, there is a region at here, there is a region at here. At the end we came to know that it is a continuous increase in frequency. लास्ट में हमें पता चला, और तब तक के लिए हर एक रीजन का एक एक नेमिंग हो चुका था, राइट? एक एक रीजन का एक एक नेमिंग हो चुका था, और हर एक रीजन का एक कॉमन प्रॉपर्टीज रहता है. फॉर एग्जांपल मान लो रेडियो वेव बोल के हमारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहता है. इट हैज ए रेंज, इट हैज ए रेंज. सो इसके रेंज में जितना भी इसके रेंज के फ्रीक्वेंसी के जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, they are showing us one common property. Similarly, जैसे कि हमारा एक्स-रे है, एक्स-रे इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एक्स-रे का एक फ्रीक्वेंसी रेंज है, एक वेवलेंथ रेंज है. सो उसी रेंज में जितना भी सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएंगे, they will be showing a common property. So similarly, whole range, whole this frequency is divided into several range, that is several groups, and denoting them in such bands is called as electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. इसका एक बेसिक आइडिया मैं लोगों को दे देता हूँ. इसी के हिसाब से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है. सो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है तो फिर देखो इसका सबसे नीचे वाले हिस्से में जिसका की फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहता है, जिसका की फ्रीक्वेंसी सबसे कम रहता है, इट कम्स विथ, ये रेंज में हमारा आ जाएगा रेडियो वेव. रेडियो वेव, ये डायग्राम को बाद में ड्रॉ करना, पहले देख लो, समझ लो. उसका एक और रेंज आ जाता है जहां पे कि हमारा आ जाता है माइक्रोवेव. माइक्रोवेव देन हमारा एक रेंज आ जाता है, दैट इज इंफ्रारेड. देन आ जाता है हमारा एक विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. देन आ जाता है हमारा यूवी अल्ट्रावायलेट. देन आ जाता है हमारा एक्सरे. देन आ जाता है हमारा गामा रे. गामा रे. So देखो frequency is increasing in this direction, that is radio wave to microwave, microwave to infrared, infrared to visible, visible to UV, UV to X-ray, X-ray to gamma ray. Frequency is increasing. If the frequency increases, what will happen to wavelength? Wavelength frequency में कुछ relation है क्या? किसी को पता है क्या? ड्रॉ बाद में करना, मैं एक स्टेटमेंट बताऊंगा उसके बाद ड्रॉ कर सकते हो. वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में कोई रिलेशन है, किसी को पता है? We know that speed c is equals to, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेता हूँ, स्पीड c इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड. एक साइकिल में जितना डिस्टेंस जा रहा है डिवाइडेड बाय जितना टाइम लग रहा है, दैट विल बी द स्पीड. एंड 1 by t इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, दैट इज लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी f, और न्यू भी लिख सकते हो. सो दैट इज इंप्लाई देन वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय f. सो अगर इस डायरेक्शन में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है तो फिर इस डायरेक्शन में वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा. सो वेवलेंथ इसी लाइन पे आगे जाके डिक्रीज होता है. इट डिक्रीजेस इन दिस डायरेक्शन, राइट? सो दैट इज व्हाई देखो विजिबल लाइट में हमारा एक 7 ठो कलर आता है ना वेव की ओर. क्या क्या 7 ठो कलर रहता है? कैन समवन टेल मी? Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. हाँ, सो देखो उसका वेवलेंथ कैसा रहता है? वायलेट से अगर रेड को जाओगे तो फिर वो इंक्रीज होता जाता है. रेड का सबसे ज्यादा रहता है ना, इंक्रीज होता जाता है. सो देयरफॉर उसका भी कलर यहाँ पे 7 तो कलर रहता जाता है, VIBGYOR. और यहाँ पे रेड के बाद इस लाइन में आ जाता है इंफ्रारेड, रेड के बाद. और यहाँ पे वायलेट से पहले आ जाता है अल्ट्रा वायलेट. इन दिस वे दे आर रिलेटेड, राइट? सो देयरफॉर this way of representation of different waves is called as electromagnetic spectrum. Electromagnetic spectrum. So therefore write it down. उसका definition electromagnetic spectrum का मतलब क्या है?
The orderly distribution of electromagnetic waves or EM waves the orderly distribution of EM waves in accordance with their frequency or wavelength in accordance with their frequency or wavelength. हम हिसाब से लिखे wavelength के हिसाब से भी हम लिख सकते हैं आराम से. In accordance with their frequency or wavelength into distinct categories or groups having common properties is called electromagnetic spectrum. Thereafter, all of you can draw this diagram. इस diagram को अभी draw कर लो तो तुम्हारे syllabus के हिसाब से ये चीजें समझ में आएगा तुम लोगों को. And now we are going to study about all of them in details. हमने basic idea पा गए, अभी और भी details में हम इसके ऊपर पढ़ाई करेंगे. Okay, is the diagram is ready? Not yet? ठीक है, कर लो. हाँ सर. Done? Okay. So now let's go and study by about them one by one. हम क्या क्या पढ़ाई करेंगे उनके बारे में. तुम लोग ये सिलेबस में क्या क्या है. पहला चीज रेडियो वेव मतलब उसका पहला चीज फ्रीक्वेंसी रेंज कैसा है, वेवलेंथ कैसा है, दो चीजें पढ़े. तीसरा चीज वो हाउ टू प्रोड्यूस दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एंड फोर्थली व्हाट ऑल आर द यूजेस ऑफ दैट वेव. उस वेव का क्या क्या यूजेस है उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे. चार चीजें क्या क्या बताया. फर्स्टली फ्रीक्वेंसी रेंज, सेकेंडली वेवलेंथ रेंज, thirdly production or the source of production, fourthly uses. So चलो एक एक करके हम लोग पढ़ाई करते हैं. फर्स्ट रेडियो वेव. कहां से कहां को जाए. रेडियो से गामा चले क्या या गामा से रेडियो चले. चलो रेडियो से गामा चलते हैं. फर्स्ट रेडियो वेव. रेडियो वेव से क्या लगता है, क्या हो सकता है, नाम से क्या पता चलता है. नो वन. ओके, हियर यू सी रेडियो मतलब अपना रेडियो है ना. रेडियो हर कोई सुने हो. रेडियो हमारे टाइम पे रेडियो चलता था. बाद में तुम लोगों के टाइम पे तो स्मार्टफोन आ गया था, टीवी आ गया था. स्पेशली आज के जमाने में स्मार्टफोन आ गया है. सो प्रीवियसली देयर वाज ऑडियो ओनली. ऑडियो भेजा जाता है, ऑडियो साउंड भेजा जाता था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. स्टार्टेड बाय मार्कोनी ने सब कुछ स्टार्ट किया था. ओके, सो नाउ व्हाट इज द वेवलेंथ रेंज.
वेवलेंथ रेंज रहता था इसका greater than 0.1 meter wavelength. Now frequency. Frequency is in order of 10 to the power 4 to 10 to the power 8 hertz. To the power 4 to 10 to the power 8 hertz. Next, source or production. कहाँ से ये बनता है? इसका source क्या है? So write it down. Produced by accelerating or decelerating charges. Accelerating or decelerating charges. So कहीं पे भी चार्ज को अगर हम एक्सेलरेट या फिर डिसलरेट कर देंगे, then their radio waves will be created. Radio waves will be created. Next, now what all the main uses? So write down. These are used in radio communication and television communication, radio communication and television communication, next में लिखो cellular voice communication. हमारा जो पहले जो कॉल्स जाते थे ना, वो रेडियो वेव से ही भेजा जाता है, रेडियो वेव. So two are the main uses of radio wave. Next, let's talk about the second one. रेडियो के बाद आ जाता है माइक्रोवेव. So माइक्रोवेव से किसी को कुछ पता चलता है, कुछ याद आता है, कुछ भी चीज? माइक्रोवेव किसी के घर में नहीं है क्या? हाँ सर, खाना बनाते हैं ना. हाँ वही तो है. रेडियो मतलब रेडियो का याद आना चाहिए, माइक्रोवेव मतलब उसी का याद आना चाहिए. यस, दैट इज वन ऑफ द एग्जांपल. सो इसका वेवलेंथ कैसा रहता है? इसका वेवलेंथ रहता है इन द ऑर्डर ऑफ, देखो 0.1 से बड़ा है, ये 0.1 से नीचे के हिस्से में रहता है. सो इट्स रेंज वेरीज फ्रॉम 0.1 मीटर टू 1 mm. 1 mm wavelength. Now frequency also accordingly varies. The frequency varies in the order of 10 to the power 9 to 10 to the power 12. This will be hertz. Mind it, this is not the exact value. This the frequency is in the order of this one. इसी ऑर्डर में रहता है, मतलब उसका 10 का पावर इसी के ऑर्डर में आ जाता है. नेक्स्ट, सोर्स. ये कहाँ से क्रिएट होता है? बेसिकली ये वैक्यूम ट्यूब से क्रिएट होता है. वैक्यूम ट्यूब्स में अगर हम चार्जेस को फ्लो करवाएंगे, then these things will be created. So therefore write it down. Sources. Klystron valve and magnetron valve. वैक्यूम ट्यूब सबको पता है क्या? केमिस्ट्री में कुछ पढ़े होंगे. इस तरह से एक ट्यूब रहेगा, यहाँ पे एक प्लेट रहेगा, इसको चार्ज करेंगे, इसको हम चार्ज करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा? चार्जेस विल फ्लो and on flowing they will radiate light, basically wave, electromagnetic wave. So इसी तरह का वैक्यूम ट्यूब्स रहता है, and from there these things are being created, microwave are created. अभी यूजेस क्या है? यूजेस में लिखो.
पहला वाला चीज, राइट इट डाउन, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव oven. So what happens in this case, whenever microwave is passed through that one, उसमें जो water particle रहते हैं, they start vibrating, and once they starts vibrating, they gains energy called as vibrational energy, जिसके वजह से वो गर्म हो जाते हैं और हमारा खाना पक जाता है, गर्म हो जाता है ऑटोमेटिकली, राइट? माइक्रोवेव का वही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट, राइट डाउन, रेडर टेक्नोलॉजी में भी ये यूज होता है, रेडर कम्युनिकेशन, रेडर कम्युनिकेशन। रेडर कम्युनिकेशन से क्या होता है, अलग अलग चीजों को डिटेक्ट किया जाता है कि हाँ कहीं से कुछ आ रहा है क्या। लाइक रेडर कम्युनिकेशन से हमें पता चल रहा है, पता चल जाता है कि कहीं से कुछ लाइक मिसाइल कहीं से कुछ आ रहा है क्या, उससे हमें पता चल जाता है। प्रीवियसली दैट टेक्नोलॉजी वाज बीइंग यूज्ड, नाउ इट इज दैट हैज बीन इम्प्रूवाइज्ड, उसको इम्प्रूव कर दिया गया है आजकल। नेक्स्ट, आल्सो इट इज बीइंग यूज्ड इन एयरक्राफ्ट नेविगेशन, एयरक्राफ्ट नेविगेशन। एयरक्राफ्ट नेविगेशन मतलब मूवीज में देखे होंगे ना कि वो लोग देखते रहते हैं कुछ तो एक जा रहा है, ऐसे करके उनका एक गोल करके रहता है, ऐसे गोल 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 रहता है, और उनको पता चलता है कि यहाँ से कुछ तो चल रहा है या फिर इस डायरेक्शन में कुछ तो चल रहा है। हैव यू एवर सीन इट? So that is basically a display which is like showing some information related using this microwave। तो चारों तरफ माइक्रोवेव छोड़ रहा है और कहीं से अगर कुछ एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, मान लो यहाँ से कुछ अपना एरोप्लेन जा रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अपना एरोप्लेन का कैसा ड्राइंग रहेगा, सपोज इस डायरेक्शन में अपना एरोप्लेन जा रहा है, whatever is there, what it is going to do, it is going to radiate microwaves in all the direction। so मान लो इस साइड से कुछ एक ऑब्जेक्ट है, इस साइड से अगर कुछ ऑब्जेक्ट है, one microwave will go through here and it will come back and strike the it will be received by the receiver of the aeroplane। एक बार अगर रिसीव हो गया तो फिर पता चल जाएगा कि हाँ इस साइड में कुछ एक ऑब्जेक्ट है, हालांकि वो अच्छा वो हम देख क्यों नहीं सकते, बिकॉज द डिस्टेंस इज वेरी फास्ट, वेरी फार, सो बहुत दूर में होगा, तो क्या हो जाएगा, हम माइक्रोवेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का यूज कर लेंगे, उससे क्या होता है माइक्रोवेव बहुत फास्ट जाता है। हमारा एरोप्लेन कितना स्पीड में जाएगा, 150-200 किलोमीटर पर आवर, नहीं सॉरी कुछ ज्यादा जाएगा शायद, 1000 किलोमीटर पर आवर। 1000 किलोमीटर मतलब कितना है, 10⁻³ व्हाट इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁸ कैन यू थिंक ऑफ, 1 लाख गुना ज्यादा स्पीड में जा रहा है, वो जाके फटक से आ जाएगा एंड विल बी एबल टू नो, हमारा आंख से दिखाई नहीं देगा, isn't it? But we'll be able to know. So this is the way how it is being used. Next one, infrared. Third, infrared. Infrared wave. So इसका भी अलग अलग चीज, इंफ्रारेड तुम लोगों ने कहीं पे सुने क्या? अपने पेरेंट्स को पूछना, पहले इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। अभी देखो हम लोगों के पास में कौन कौन सा वो ऐप है फॉर द फाइल ट्रांसफर अलग अलग एप्स रहता है ना, लाइक व्हाट इज दैट वन कॉल्ड, 2 ऐप आया था ना, जेंडर एक था और एक ऐप कुछ एक था ना जिसमें कि हम लोग फाइल ट्रांसफर करते थे, शेयर इट, यस जेंडर ऐप है, शेयर इट ऐप है। इससे पहले क्या था, किसी को पता है किससे फाइल ट्रांसफर होता था, और वो बहुत स्लो था। लाइक एक इमेज शेयर करोगे तो फिर तुम्हें 1 मिनट 2 मिनट वेट करना पड़ेगा। 4 MB 5 MB का अगर एक ऑडियो सॉन्ग अगर शेयर करोगे फिर तो गया, वेट करो थोड़ा सा तभी जाके ट्रांसफर होगा। ब्लूटूथ मोबाइल ब्लूटूथ उसी टेक्नोलॉजी से फाइल ट्रांसफर होता था। उससे पहले किससे यूज होता था, उससे पहले यही इंफ्रारेड को यूज करके डेटा ट्रांसफर होता था। पहले अपने पेरेंट्स को पूछना, उन लोगों को पता होगा इसके बारे में, इन केस वो लोग उस टाइम पे मोबाइल यूज कर रहे थे बिगिनिंग के स्टेजेस में।
So let's talk about the wavelength. What is the wavelength? अपना पहला खत्म हुआ था 1 mm में, तो फिर ये स्टार्ट हो जाएगा 1 mm to 700 nm. nm मतलब क्या होता है? Nanometer. 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 Nano. Okay, so what will be the frequency? Frequency is in the order of, you can write it down, 10 to the power 11 to 5 into 10 to the power 14. Now what is the source? इसका source क्या है? Write it down. These are produced by hot bodies and molecules. Hot bodies and molecules, hot molecules. या फिर whenever one atom is there or some molecules are there and they starts vibrating, जब वो लोग वाइब्रेट करने लगेंगे then they will produce this infrared wave. वो लोग एक wave generate करते हैं, that is infrared wave. I need atoms and molecules. I'm not talking about electrons. Atoms and molecules. Those are called as infrared. Now, what all will be the uses? Write it down. Infrared detectors रहते हैं ना, अर्थ सैटेलाइट में पता चलता है, वो लोग यूज करते हैं. किसी को पता है इसके बारे में? नहीं? Okay, write it. Infrared detectors are used in Earth satellite. Are used in Earth satellite. एक और यूज भी इसमें लिख लो. Used for, it is used for finding out molecular structures. Molecular structure कैसे है उसको भी डिटेक्ट करने के लिए इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का, इंफ्रारेड वेव का यूज किया जाता है. Next one is visible. Visible lights मतलब अपना विजुअल. नाउ इसका किसी को पता है वेवलेंथ कितना से कितना तक रहता है? जनरल जीके में ये जनरली पूछा जाता है, बचपन में रटे हुए होंगे. 400 nanometer to 700 nanometer. So this will be 700 nanometer to 400 nanometer. So what will be the order of frequency for this one? The order of frequency is coming to be, देखो इसका मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, बाकियों के केस में मैंने ऑर्डर पूछा था, इसका मैं एग्जैक्ट वैल्यू लिख ले रहा हूँ. दिस इज 4 into 10 to the power 14, 7 into 10 to the power 14. This much hertz. अच्छा, नाउ विजिबल लाइट आता कहाँ से है? कहीं पे देखे होंगे, मतलब केमिस्ट्री में पढ़े होंगे स्पेशली. Whenever we are giving some energy, electrons का क्या होता है? They goes to higher cells, higher orbits में वो jump कर जाते हैं. Higher orbit में jump कर जाते हैं, but that is a unstable position for them. वहाँ पे अगर unstable position वो लोग क्या करेंगे? They will try to become stable. और stable होने के लिए वो लोग क्या करेंगे? They will go back to the stable orbit. Stable orbit में जब jump करेंगे, they are going to radiate lights. For example, let's say here is a nucleus, and here is one electron is there in the first orbit. इसको मैंने क्या किया? एनर्जी दे दिया तो ये एक्साइट होके थर्ड ऑर्बिट में आ गया.
थर्ड ऑर्बिट में आ गया, सो दिस इज वन अनस्टेबल ऑर्बिट फॉर दिस इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन के लिए ये अनस्टेबल ऑर्बिट है। तो फिर ये अनस्टेबल ऑर्बिट में तो रह नहीं सकता ना, सो व्हाट इट विल डू, इट विल कम बैक टू द ऑर्बिट 1, वो चाहे तो ऑर्बिट 2 को आएगा, उसके बाद ऑर्बिट 1 को आएगा, या फिर डायरेक्टली ऑर्बिट 1 को आएगा। In case it is coming from orbit 3 to 2, it is going to radiate one color of light, one type of light. If it is going to jump from 2 to 1, it is going to radiate another type of light. If it is going to jump from 2 to 1, 3 to 1 directly, it will radiate another type of light. And we are getting basically visible lights. यहीं से हमें visible lights दिखाई देता है, right? रहता है ना लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, ज्यादा डेप्थ में है, लेकिन जिनको पता होगा उनको आइडिया रहेगा इसके बारे में, राइट? सो देयरफॉर राइट इट डाउन where it is being produced. Jumping of electrons from higher orbits. From higher orbits to lower orbits generate visible lights. हमेशा विजिबल लाइट जनरेट नहीं करता, अदर लाइट भी जनरेट करता है, लेकिन वहां पे विजिबल लाइट दिखाई दिया है। इसका यूज कहाँ पे है, इसका यूजेस क्या क्या है? देखो विजिबल लाइट क्या है, अपना जो आई है, आई कैन सेंस द विजिबल लाइट and it immediately transfer the signal to the brain and we can see the objects. So आराम से तुम लोग स्क्रीन को देख पा रहे हो because of this visible light, because visible light is coming towards our eye is able to detect. अगर इसको इंफ्रारेड लाइट आता ना तो ये देख नहीं पाता, हम लोगों को पता ही नहीं चल पाता, या फिर कोई और वेव वगैरह आ रहा है, in case some other light is coming, it won't be able to detect it. So that is why if the light is visible light, then only we can see the object. So whole world we can see, हम एक दूसरे को देख सकते हैं, we can see the mobile, you can see the book copy, जो सब कुछ भी हम देख सकते हैं पूरा दुनिया को, that is because of visible light. Once the frequency or the wavelength goes beyond the visible light, then we won't be able to see at all. इसलिए हर एक चीज को हम लोग देख नहीं सकते, right? So therefore write it down, इसका uses क्या क्या है? We can see different worldly things. We can see different worldly things because of visible light. Because of visible light. Next, ultraviolet ray. Visible का 7 कलर रहता है, याद रखना, visible का 7 कलर रहता है VIB GYOR. अब ये रेड के इस साइड में आ जाता है इंफ्रारेड. On this side we are getting infrared, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, isn't it? वेवलेंथ अगर बड़ा हो गया तो फिर इंफ्रारेड, और अगर वेवलेंथ अगर छोटा हो गया देयर इज वायलेट की इस साइड में, इट विल बी अल्ट्रावायलेट. सो लेट्स गो एंड स्टडी अबाउट अल्ट्रावायलेट रे. इसका भी अलग अलग चीजें हम पढ़ेंगे. फर्स्टली वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, सोर्स एंड यूजेस. वेवलेंथ इसका कितना तक रहेगा, उसका वेवलेंथ कितना तक था, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर. सो उसके बाद हम और भी डिक्रीज करेंगे, 400 नैनोमीटर से और भी नीचे जाएंगे, एंड विल बी गोइंग टू इन द ऑर्डर ऑफ, यू कैन राइट इट डाउन, 400 nanometer to 1 nanometer. This is the wavelength range. Frequency range क्या हो जाएगा? Frequency range is 10 to the power 16 to 10 to the power 17. In this order. Sources. Write down.
अल्ट्रावायलेट रेज जनरली ये क्रिएट होता है अगर बहुत ज्यादा एक बॉडी को अगर नॉर्मली गर्म कर देंगे ना, बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन इट विल जनरेट नॉर्मली और इंफ्रारेड, लेकिन बहुत ज्यादा अगर गर्म कर देंगे इट विल जनरेट अल्ट्रावायलेट रे. सो देयरफॉर राइट इट डाउन. These are produced while very hot bodies. इसलिए देखना सन बहुत ज्यादा गर्म है ना, इसलिए वहां से अल्ट्रावायलेट रे आता है. एंड खुशकिस्मत से हम अपना ओजोन लेयर है जो कि उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसका हाई इंटेंसिटी को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो लो इंटेंसिटी से वो अंदर आता है, लो इंटेंसिटी से वो कुछ नहीं कर सकता. द मेजर पोर्शन हैज बीन एब्जॉर्ब्ड इन द ओजोन लेयर. So it is produced by very hot bodies. And अपने रियल लाइफ में भी हम कुछ स्पेशल लैंप्स इसको क्रिएट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो फ्रॉम स्पेशल लैंप्स, क्योंकि सन को तो यहाँ पे क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ स्पेशल लैंप से इसको क्रिएट किया जा सकता है. इट इज पॉसिबल. राइट. नेक्स्ट, व्हाट ऑल विल बी द यूजेस. इसका यूजेस क्या क्या हो सकता है, जस्ट राइट इट डाउन. जनरली इसको क्या होता है ना, जर्म्स को मारने में इसको यूज किया जाता है. ये वाला रे को कहीं कहीं पे अगर मान लो जर्म्स हैं तो वहां पे मारने के लिए इसको यूज किया जाता है. सो देयरफॉर राइट इट डाउन. इट इज यूज्ड टू किल जर्म्स, स्पेशली अपने वाटर प्यूरिफायर में रहता ना यूवी टेक्नोलॉजी. आजकल ध्यान में देखना, ये लोग यूवी टेक्नोलॉजी बोलते हैं बट बहुत सारे केसेस में यूवी टेक्नोलॉजी रहता नहीं है, बस बोला जाता है यूवी टेक्नोलॉजी. वो बस बोलने के लिए रहता है, लिखने के लिए रहता है, बट इन रियलिटी दे आर नॉट यूजिंग इट. और इवन दो दे आर यूजिंग इट, दे आर नॉट यूजिंग ए प्रॉपर टेक्नोलॉजी using which the water purification can happen in a proper way. क्योंकि वो बहुत महंगा पड़ता है और महंगा चीजें लाइक लोग खरीदेंगे नहीं. जहाँ पे सस्ता मिलेगा वही वाला खरीदेंगे ना, थोड़ी ना दिख रहा है कि बैक्टीरिया को या फिर जर्म्स को मार रहा है कि नहीं मार रहा है. सो दैट इज व्हाई इस तरह का चल रहा है आजकल. सो देयरफॉर इट इज बीइंग यूज्ड इन वाटर प्यूरिफायर एंड समटाइम इट इज यूज्ड फॉर आई सर्जरी. सर्जरीज में भी ये यूज होता है. सो राइट इट डाउन. Sometime used in eye surgery. Sometime used in eye surgery. Next one, sixth, X-ray. X-ray मतलब क्या रहता है, क्या याद आता है X-ray सुनने से? हाँ, जाते हैं ना डॉक्टर बोलते हैं जाओ एक्सरे करके आओ. कुछ बदमाशी कर रहे थे, गिर गए, फिर कुछ तो हो गया, हाथ में दर्द हो रहा है, जाओ एक्सरे करके आओ, हाथ पैर टूटा है क्या चेक करेंगे हम. Isn't it? तो उसमें क्या होता है, किसी को आइडिया है क्या एक्सरे में क्या देखता क्या है डॉक्टर आखिर? सो जो रेज होते हैं वो मसल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं बट बोन्स के अंदर नहीं करते. ओके, तो उससे क्या होता है? बोन्स का इमेज आ जाता है. ओके, गुड. सो बेसिकली एक्सरे क्या होता है, वो मसल से पेनिट्रेट कर पाएंगे लेकिन बोन्स को पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे. सो दूसरी साइड से बोन से दूसरी साइड में अगर हम एक स्ट्रक्चर लेंगे तो जहां जहां पे मसल है वहां पे रे आ जाएंगे, लेकिन जहां जहां पे मसल नहीं है वहां पे रे नहीं आ पाएंगे. सो देयरफॉर व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज दैट, और दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक. इसलिए जहां जहां पे हड्डी है वहां पे ज्यादा व्हाइट रहता है ना, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होके आके डिटेक्ट कर लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मान लो इस तरह का तुम्हारा बोन है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है. सो यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सरे को छोड़ देंगे, यहाँ पे सोर्स ऑफ एक्सरे रहेंगे. सो जो रेज मसल्स में जाएंगे वो आराम से चले जाएंगे, they will able to cross it. But those rays which are striking the bones, they cannot penetrate it. So therefore what will happen, because of reflection they will come back, and whenever they are come, detectors will be at this points. यहाँ पे detectors भी रहते हैं, source भी रहते हैं, detectors भी रहते हैं. So detectors can detect on which portions the light is coming, X-rays are coming, और उसी पोर्शन को वो लोग व्हाइट कर देंगे. इसीलिए देखना अपना हड्डी वाला पोर्शन थोड़ा सा व्हाइट रहता है, isn't it?
सो वही से हमें पता चलता है कि इनकेस कहीं पे कुछ फ्रैक्चर है तो लाइट वहां से पास होके चला जाएगा, आ नहीं पाएगा। और डॉक्टर्स को एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ बोन पता है, दैट इज व्हाई दे कैन डिटेक्ट वेदर देयर इज अ फ्रैक्चर और नॉट, राइट, वहीं से पता चल जाता है। सो देयरफॉर लेट्स गो एंड स्टडी अबाउट व्हाट इज द वेवलेंथ। फर्स्ट ऑफ ऑल वेवलेंथ इसका पुराने वाले कितना गया था, 1 नैनोमीटर तक गया था ना, तो इसका 1 नैनोमीटर से भी नीचे आ जाएगा। सो देयरफॉर राइट डाउन 1 nanometer to 10 to the power minus 3 nanometer, 10 to the power minus 3 nanometer, 10 to the power minus 3 nanometer मतलब कितना हो जाएगा? Can someone tell me? Picometer. It will be picometer. Frequency range क्या आ जाता है? Frequency range becomes 10 to the power 16 to 10 to the power 19. In this order आता है हर्ट्ज में, right? और इसका सोर्स क्या रहता है, कहाँ से ये प्रोड्यूस होता है? So write it down. These are created by X-ray tubes. These are created by X-ray tubes. X-ray tubes में basically क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स दे गो एंड स्ट्राइक्स द मेटल ऑब्जेक्ट, मेटल ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने से वहां से एनर्जी रेडिएट होता है एंड एनर्जी इज बीइंग रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्सरे, और वही एक्सरे को यूज किया जाता है। कहाँ कहाँ पे ये यूज होता है? तो राइट डाउन, फर्स्टली ये एक्सरे हमारा यूज हो जाता है लाइक अपना मेडिकल में यूज होता है। सो राइट इट डाउन, it is used in medical technology, दूसरा चीज मेटल स्ट्रक्चर को भी इससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। मेटल स्ट्रक्चर को कहाँ पे क्रैक है, क्या जहाँ पे क्रैक है उधर से ये चला जाएगा, जहाँ पे क्रैक नहीं है वहां पे नहीं जा पाएगा। सो देयरफॉर नेक्स्ट सेकंड यूज में लिख लो, फॉर डिटेक्टिंग metal structures or crystal structures, metal structures or crystal structures. So this is what is X-ray. Lastly, gamma ray. Gamma ray कहीं पे सुने हो? गामा रे नहीं सुने हो? कैंसर ट्रीटमेंट के लिए रहता है ना, अलग अलग ये रहता है, क्या क्या रहता है कैंसर के लिए? एक रहता है अपना मेडिसिन से, एक रहता है रे से, हम लोग भी यूज कर सकते हैं रे से। So therefore let's go and write it down. What is the wavelength for this one? Wavelength for this one is, ताकि सब कुछ मैं पेस्ट कर देता हूँ। Wavelength goes from, it is less than 10 to the power minus 3 nanometer. It is less than this one. And what about the frequency? Frequency goes from 10 to the power 18 to 10 to the power 22 hertz. Now what is the source of this one? कहाँ से होता है? केमिस्ट्री में शायद पढ़े होंगे, radioactive decay, right? Write down radioactive decay source. Source is the radioactive decay से ये होता है। कभी कभार ये न्यूक्लियर रिएक्शन से भी होता है, वही रेडियोएक्टिव डीके मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन। Now what are the uses are there? Write down. In medicines to destroy cancer cells. In medicines to destroy cancer cells. So क्या होता है, मान लो कहीं भी कैंसर सेल्स ग्रोथ हो रहा है, so if you are
penetrating, if we are supplying the gamma ray of proper frequency, mind it, frequency कभी cross नहीं होना चाहिए. Once it is crossing the limit, then that is more deadly. वो बचाने की जगह पेशेंट को मार ही डालेगा उल्टा. मिशन सक्सेसफुल क्या रहता है, एक लाइन रहता है ना, हाँ, so operation successful, patient dead. So therefore operation successful मतलब क्या हो जाएगा, if you are giving a higher frequency gamma ray, what will happen, तुम्हारा पर्पस क्या था, कैंसर सेल्स को मारना, कैंसर सेल्स सारे के सारे मर जाएंगे, कैंसर सेल्स भी मर जाएंगे, साथ ही साथ पेशेंट भी मर जाएगा. ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड पेशेंट डेड. सो दीज ऑल आर द डिफरेंट यूज. अच्छा, तुम लोगों को ये इसका क्या करना है, इसका अलग अलग सिंगल पॉइंट करके एक मार्क का क्वेश्चन आता है इसका. बेसिकली तुम्हारे यहाँ पे 2 मार्क का मैक्सिमम आ सकता है, बट 1 मार्क का जनरली क्वेश्चन आता है. मान लो तुम्हें बोल सकता है कि इंफ्रारेड इज यूज्ड एट वेयर, उसका 4 ऑप्शन दे देगा. सो यू हैव टू नो इट. उसका फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक रहता है, फ्रीक्वेंसी दिस रेंज टू दिस रेंज, वो कौन सा लाइट रहता है, कौन सा बैंड रहता है, व्हाट इट इज कॉल्ड. सो दैट इज व्हाट इज सच टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन एग्जाम. इसी तरह का क्वेश्चन तुम्हारे आ सकता है. उसके अलावा कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे कि वन ऑफ द थिंग इज दैट यस ऑफ कोर्स देयर आर डिफरेंट बैंड्स ऑफ lights, electromagnetic wave we can see, radio wave, microwave, infrared, visible, ultraviolet, x-ray, gamma ray. But mind it, all of them are dangerous beyond the limit. Even the visible light भी अगर लिमिट के बाहर हो गया, उसका इंटेंसिटी अगर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया, then it can make you blind. इसलिए देखना, बहुत ज्यादा लाइट को देखना मत बोलते हैं. क्यों? बहुत ज्यादा लाइट को अगर देखोगे, हमारे आई में जो सेंसर्स है, they will be getting damaged. And once they are getting damaged, you won't be able to see it anymore. इसलिए ज्यादा लाइट को देखना मत. डायरेक्टली बोलते हैं ना, ज्यादा लाइट होने से अपना ये आ जाता है ना, क्या कहते हैं उसको, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी हो जाने से क्या कहते हो, लेजर हो जाता है ना. लेजर से मेटल को भी कटिंग किया जा सकता है. सो सोचो आंख का क्या हो जाएगा. सो देयरफॉर एनी ऑफ देम, इवन आवर अल्ट्रावायलेट रे हैज सम यूजफुल इफेक्ट्स, बट इट हैज टू बी अंडर लिमिट, अंडर फ्रीक्वेंसी लिमिट. अगर फ्रीक्वेंसी लिमिट ज्यादा हो गया तो फिर क्या होता है, किसी को पता है क्या? अल्ट्रावायलेट रे, उसका एक साइड इफेक्ट रहता है स्किन कैंसर. सो राइट डाउन, एक स्टार मार्क देके लिख लो. ओवर एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रे, एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रे, ऑफ कोर्स ओवर एक्सपोजर, या फिर ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली को होना चाहिए. एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रे कैन कॉज स्किन कैंसर, राइट. सो और सन से जो अल्ट्रावायलेट रे आता है, वो कौन सा लेयर में रुक जाता है? ओजोन लेयर. ओजोन का स्ट्रक्चर क्या रहता है? ओजोन का स्ट्रक्चर क्या रहता है? O3, right? Okay, so write it down. The ultraviolet rays coming from sun is stopped or absorbed in atmosphere by ozone layer. ओजोन लेयर को कौन डिस्ट्रॉय कर लेता है? केमिस्ट्री. CFC. Yes, chlorofluorocarbon. So write it down. वहां पे nowadays ozone layer depletion is happening because of CFC, chlorofluorocarbon. ये मैं कुछ एक्स्ट्रा डेटा बता रहा हूँ, और इसके ऊपर भी कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ.
otherwise your this one is over, electromagnetic spectrum is over and your electromagnetic wave chapter is over now. इतना ही तुम लोगों की सिलेबस में है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी इनके सब कुछ है तो फिर वो हम क्वेश्चन आंसर के साथ डिस्कस कर ही लेंगे, राइट। बट माइंडेड ऑलवेज कि जो भी न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल्स में तुम्हें 10 बेसिक फॉर्मूलाज को ही यूज करना है, जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, राइट। With this one, let's end the class and your electromagnetic wave chapter is over.